डिलीवरी के आसपास अगर आपको कोविड होता है, ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर उस टाइम आपको कोविड हुआ और आपकी डिलीवरी हम करते हैं, आप बच्चे को दूध पिला नहीं सकते, अपना दूध निकाल के डेफिनेटली आप बच्चे को दे सकते हैं, आपका दूध खराब नहीं है बच्चे के लिए। और उन्होंने कहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेशन देनी जरूरी है, पर 12 हफ्तों के बाद। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो भी गो हेड विद द वैक्सीनेशन। आपको वैक्सीनेशन करानी चाहिए। अगर आपने फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन ले ली, उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो गए, तो डेफिनेटली सेकेंड डोज एटलीस्ट 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक आप डिफर करेंगे। देखो, हमारी जो फॉरेन की गाइडलाइंस और हमारी फॉक्सी की जो गाइडलाइंस आई है, वो कहती है कि ब्रेस्ट फीडिंग में वैक्सीनेट कराओ। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ, ਐਡੀਟਰ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈਟਵਰਕ babushahi.com। ਕੋਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸਪੈਕਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਲਵਾਉਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਐਕਸਪਰਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਪਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਸਵਪਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ डायरेक्टर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਉਹ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਸਰਜਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਰੋਬੋਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਗਾਇਨਿਕ ਸਰਜਨ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਪੇਨਲੈਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ सके। सपना मैडम, वेलकम, स्वागत है आपका। मेरा ख्याल आप हिंदी में ज्यादा। हाँ, मैं हिंदी में बात करूंगी। हाँ, मुझे पंजाबी मुझे समझ में पूरी आती है, पर ज्यादा अच्छा नहीं बोल पाऊंगी। वैसे आप तो काफी देर हो गए पंजाब में काम करते हुए। समझ पूरी आती है, पर वो ना मैं आधी अधूरी पंजाबी बोलने से अच्छा है कि मैं हिंदी में बोलूं। समझ तो लेते हो, समझ पूरी लेती है। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन के, आप कहाँ को बिलोंग करते हैं और अब तक कितनी सर्जरीज और डिलीवरीज कर चुके हैं वो भी। जी।
बेसिकली मैं डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा हूँ और वैसे तो मैं पैन इंडिया बोलूंगी। मेरी परवरिश क्योंकि मेरे डैडी आर्म फोर्सेस में थे, तो ओके। इसलिए पूरे इंडिया में मेरी परवरिश हुई है, हर स्टेट में हमारी पढ़ाई हुई है। उड़ीसा को बिलोंग करती हूँ और चंडीगढ़ में हूँ 2001 से, तो मैं बोलती हूँ मैं तो पंजाबी हूँ, पंजाब। क्योंकि यहाँ रहते हुए मेरे बहुत साल हो गए। और मैं कम से कम डिलीवरीज तो शायद गिनती से बाहर हो चुके हैं, शायद 25-26 हजार डिलीवरीज तो डेफिनेटली कर चुकी हूँ, बिल्कुल। और 20,000 से ऊपर गायनी सर्जरी कर चुकी हूँ। आई वॉज द फर्स्ट वन। मैंने इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बियॉन्ड दिल्ली सबसे पहले रोबोटिक सर्जरी मैंने ही शुरू की थी फोर्टिस में। फर्स्ट गायनी रोबोटिक सर्जरी भी नॉर्थ इंडिया में मैंने की है, मैंने। सो प्राइवेट सेक्टर में। सो ठीक है, बर्थ पेनलेस डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियंस और चाहे वाटर बर्थिंग का भी प्रोग्राम यहाँ पे मैंने शुरू किया था। सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इतनी कोई महान नहीं हूं मैं, बट ये कि आप लोगों की हेल्प से आगे आगे बढ़ती जा रही हूँ और आप लोगों की सपोर्ट से ज्यादा कुछ अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत ऐसा होता है कि जब कोई इमरजेंसी होती है और क्रूशियल लाइफ सेविंग क्वेश्चन होता है, तो तब तो डॉक्टर को खुदा ही मानते हैं लोग। डॉक्टर तो तो हम इशू पे आए। तो इशू आज का ये है हमारा, और आपके आपके साथ जुड़े बहुत सारे इशू हैं, लेकिन आज का इशू है वो कोविड-19 वर्सेस प्रेगनेंसी और प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसमें एक तो पहला मेरा सवाल ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो कितनी उसको कोविड का, कोरोना का जो इन्फेक्शन का क्या खतरा है, और अगर हो जाए तो फिर वो कैसे टैकल कर सकती? देखो, कोविड-19 इन्फेक्शन का खतरा जितना आम लोगों के को है उतना ही प्रेग्नेंट वुमेन को है। ओके। सो खतरे का रिस्क अगर हम देखा जाए तो दोनों को बराबर है, और ऐसा कोई स्टडी ये नहीं बताती कि प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी कोविड-19 होने से एज कंपेयर टू द लोकल, एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई और साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, ऐसे सिचुएशन में एक प्रेग्नेंट लेडी को मॉनिटर करना, क्योंकि हम माँ को मॉनिटरिंग के साथ बच्चे की मॉनिटरिंग करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर उसको सांस में मुश्किल हो, उसको एडमिट करना पड़े, उसका ध्यान रख पाएंगे, पर बच्चे के लिए जो अल्ट्रासाउंड की जरूरत होती है, बच्चे के लिए जो मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, वो नहीं हो पाती, क्योंकि उसके लिए अलग इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को स्पेसिफिकली कहा जाता है कोविड से अपना बचाव रखिए, क्योंकि हम आपका ध्यान तो रख पाएंगे, पर आपके अंदर पलने वाले बच्चे का ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन सिचुएशंस में। दूसरी बात है कि अगर आपका डिलीवरी के आसपास अगर आपको कोविड होता है, ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर उस टाइम आपको कोविड हुआ और आपकी डिलीवरी हम करते हैं, तो आपको बच्चे से कम 17 डेज तक हम दूर रखते हैं, दूर रखा जाता है कि बच्चे में आपके थ्रू कोविड ना हो जाए। आप बच्चे को दूध पिला नहीं सकते, अपना दूध निकाल के डेफिनेटली आप बच्चे को दे सकते हैं, आपका दूध खराब नहीं है बच्चे के लिए। दूध पर ठीक है। हाँ, आप बच्चे को डायरेक्टली पकड़ के दूध नहीं पिला सकते, क्योंकि कांटेक्ट आपके कांटेक्ट सांस और नहीं। बच्चे की कांटेक्ट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम बच्चे को दूर रखते हैं। ऐसे केस में बच्चा माँ का दूध पीना सीखता नहीं है और फ्यूचर में भी बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है। सो इसलिए हम करते हैं कि क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों की सेफ्टी के लिए बेटर है कि प्रेग्नेंट वुमेन जहां पर कोविड के केसेस हो या घर में लोगों को कोविड हो रहा हो, तो वहां से वो दूर हो जाए, जिससे उनमें ये प्रॉब्लम ना हो। पॉसिबल रहे तो घर से बाहर निकलते ही मास्क पहने, और घर के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन है कि घर में इतने फैमिली मेंबर्स है जिनका ट्रैवलिंग, बाहर आना जाना बहुत ज्यादा है, ऐसे सिचुएशन में आपको घर के अंदर भी मास्क पहनना वुड बी अ बेटर चॉइस। और चॉइस ऑफ मास्क में अगर आप N95 मास्क खरीद सकते हैं, ज्यादा महंगा नहीं आता, आप उसको यूज कर सकते हैं। नहीं है तो एक नॉर्मल क्लॉथ मास्क भी आपके लिए सेफ है, पर डेफिनेटली अपना मास्क यूज कीजिए। तो क्या ऐसे पिछले 1 साल के ज्यादा हो गया इसको, कोई ऐसे केसेस आपके ध्यान में आए भी हैं जो प्रेग्नेंट वुमन को कोविड हुआ या डिलीवरी के वक्त, ऐसे केसेस हैं आपके नोटिस? बहुत सारे, रादर प्राइवेट सेक्टर में हम लोग ने सबसे पहले कोविड डिलीवरी शुरू की थी, एंड सबसे पहले कोविड डिलीवरी भी फोर्टिस में मैंने ही की है जी। सो कोविड पॉजिटिव पेशेंट की डिलीवरी अब तो खैर आदत सी बन गई है हम लोगों के लिए। अच्छा, पर काफी यस, केसेस हो गए? बहुत सारे, अच्छा। बहुत सारे। एटलीस्ट हम लोग कोविड पॉजिटिव डिलीवरीज कम से कम
40 के ऊपर हम कर चुके हैं। और पर द ओनली प्रॉब्लम है दैट सबसे पहले कि प्रेग्नेंट वुमेन में कोविड पॉजिटिविटी में सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, तो ये जब हम उनका रूटीन टेस्टिंग कर रहे होते डिलीवरी से पहले तब पकड़ में आता है। अच्छा, वैसे और उनको सिम्टम्स नहीं होते, ज्यादा नहीं होते। और दूसरी चीज इनमें रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। प्रेग्नेंट वुमेन को भगवान ने कुछ ऐसी शक्ति दे रखी है कि वो फाइट अच्छा कर लेती है। अच्छा, सो प्रेग्नेंट वुमेन को कोविड से फाइट करने की शक्ति भगवान ने बहुत अच्छी दे रखी है। और पर ओनली प्रॉब्लम जहां हमें आती है, हम फेस करते हैं कि माँ और बच्चे को 17 दिन तक दूर रखना, निक्कू में वो रखते एक चैलेंज बन जाता है हम लोग के लिए। फिर निक्कू में रखते हैं? हाँ, माँ और बच्चे को निक्कू में एक दिन रखते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे का 24 घंटे के बाद बच्चे का कोविड टेस्ट हम भेजते हैं। कोविड टेस्ट जब बच्चे का नेगेटिव आता है तो बच्चे को दूसरे फैमिली मेंबर्स को हैंड ओवर किया जाता है जो कोविड नेगेटिव है। मतलब घर में जो बाकी लोग रहते हैं जिनका कोविड टेस्ट हो रखा है और वो नेगेटिव है, बच्चे हम उनको दे देते हैं। माँ और बच्चे को 17 डेज तक दूर रखा जाता है। 17 डेज के बाद माँ बच्चे को अपना खुद हैंडल करती है। हाँ जी। तो क्योंकि उस हालत में जो मेडिसिन वगैरह की काफी लिमिटेशंस होती होगी ना, प्रेग्नेंट लेडीज? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन है जो आप प्रेग्नेंट लेडीज को दे सकते हो। और कोविड की मेडिकेशन देखो, अगर हम प्रेगनेंसी और कोविड को लिया जाए, अगर कोई ऐसी सीरियस हालत में है तो पहले उसकी जान बचानी होगी। इवन प्रेग्नेंट लेडी का सीटी स्कैन भी हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो। पर पेट में हम शील्ड डालते हैं जिससे बच्चे को एक्सपोजर ना मिले, तो वो सारे प्रिकॉशंस डेफिनेटली लेने पड़ते हैं। पर ट्रीटमेंट अच्छे ढंग से मिल जाती है, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अब आए वैक्सीनेशन की ओर। जो वैक्सीनेशन है उसका क्या स्टेटस है कि प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीनेशन किया जा सकता है या कब किया जा सकता है, क्या है इसका? देखो, हमारी आईसीएमआर की गाइडलाइंस कहती हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेशन मत कराओ, क्योंकि ऐसा नहीं कि वैक्सीन अनसेफ है, पर हमारे इंडिया में कोई स्टडी नहीं हो रखी है वैक्सीनेशन के लिए। इंडिया में कोई स्टडी नहीं हो रखी, इसलिए हमारे पास गाइडलाइंस नहीं। कोविड आया भी तो साल पहले ही है। हाँ जी। पर फॉरेन जैसे यूएस यूके में उन्होंने करीब 80,000 प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर स्टडी कर ली है और उन्होंने कहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेशन देनी जरूरी है, पर 12 हफ्तों के बाद। अच्छा। फर्स्ट 12 वीक्स में जब बच्चा बन रहा होता है तब आप वैक्सीनेशन नहीं दे सकते, पर उसके बाद डेफिनेटली करा सकते हैं। इंडियन गाइडलाइन जो हमारी जो सोसाइटी है, गायनी सोसाइटी है, उसने कहा है कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन को अगर ज्यादा रिस्क है इन्फेक्शन का, अगर ऐसी सिचुएशन में है जहां घर वाले सारे आस पड़ोस में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रिस्क है, ऐसे सिचुएशन में 28 हफ्ते के बाद वो अपना वैक्सीनेशन करा सकती है। पर हमारी कोई स्ट्रेट अवे गाइडलाइंस आई नहीं है कि आप प्रेग्नेंट वुमेन में वैक्सीनेशन करा सकते हो। इसलिए फिलहाल हम प्रेग्नेंट वुमेन को आइसोलेट होने को कह रहे हैं कि घर में अपने आप को एक्सपोजर से कम रखिए, बट अदरवाइज वैक्सीनेट पर से हम इंडिया में नहीं करा रहे हैं। जबकि ऐसी कोई स्टडी भी नहीं आई है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अनसेफ है, ऐसा भी नहीं है। पर बिकॉज इंडिया में कोई प्रॉपर स्टडी हुई नहीं अभी तक, तो इसलिए हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर वैक्सीनेशन हुई तो उसके बाद ड्यूरिंग दैट पीरियड प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसका कोई क्या इफेक्ट कोई है या क्या स्टडी है कोई क्या? हाँ, उसकी स्टडी कहती है कि अगर आप वैक्सीनेट हो गए और उसके बाद प्रेगनेंसी हो गई, आपके बच्चे को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि किल्ड वैक्सीन है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो भी गो हेड विद द वैक्सीनेशन। आपको वैक्सीनेशन करानी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया। और मेरे पास आजकल बहुत फोन आ रहे हैं ये कहने की वैक्सीनेशन कब कराएं, पीरियड्स के दौरान करानी है, पीरियड्स के बाद करानी है, पीरियड से पहले करानी है। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, आप किसी भी टाइम वैक्सीनेट करा लीजिए, उसका आपके बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन ले ली, उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो गए, तो डेफिनेटली सेकेंड डोज एटलीस्ट 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक आप डिफर करेंगे। पर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और वैक्सीनेशन का आपका स्केड्यूल आया हुआ है, प्लीज गो हेड एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। भागिए मत वैक्सीनेशन से, बिकॉज अगर आप सेफ रहेंगे आपकी फैमिली सेफ रहेगी। तो नेक्स्ट जो ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है वो ब्रेस्ट फीडिंग का है। जो ब्रेस्ट फीडिंग जो हो रही है, तो वो उस दौरान वैक्सीनेशन का
क्या रोल हुआ, वैक्सीनेशन हुआ तो बच्चे पे क्या इफेक्ट होगा? नाउ ब्रेस्ट फीडिंग में देखो, हमारी जो फॉरेन की गाइडलाइंस और हमारी फॉक्सी की जो गाइडलाइंस आई है वो कहती है कि ब्रेस्ट फीडिंग में वैक्सीनेट कराओ। क्यों कराओ? क्योंकि एक तो वैक्सीन में कोई आपका जो वायरस कोई ब्रेस्ट मिल्क में सेक्रेट नहीं होता। सेकेंड चीज, ये किल्ड वैक्सीन है। वैक्सीनेशन से फायदा लैक्टेटिंग मदर को ये होगा कि उसके बॉडी में जो एंटीबॉडी बनेंगे वैक्सीनेशन की वजह से, वो एंटीबॉडी बच्चे को ट्रांसमिट हो जाएंगे ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, तो बच्चे को फायदा मिलेगा। अच्छा, वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो, तो एंटीबॉडी, हम क्या चाहते हैं, एंटीबॉडी बन जाए ना, एंटीबॉडी हमारे बॉडी में कोविड को फाइट करने की क्षमता बन जाए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो और आपको वैक्सीनेशन मिल गई, आपका बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा जो बच्चे तक जा सकता है। इसलिए वैक्सीनेशन फॉरेन में तो सारी कंट्रीज में, जितनी भी कंट्रीज में स्टडीज, यूएस यूके में 1 लाख से ऊपर उन्होंने स्टडी कर चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि लैक्टेटिंग मदर को ब्रेस्ट फीडिंग मदर को वैक्सीनेट कराओ। इंडिया में भी फॉक्सी गाइडलाइंस कह रही है कि एटलीस्ट लैक्टेटिंग जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को डेफिनेटली वैक्सीन कराओ, जिससे कि उसकी एंटीबॉडी बच्चे तक मिल सके। तो मेरा पर्सनल मानना भी यही है कि अगर आप बच्चे को अपना दूध दे रहे हो, आप प्लीज जाके अपना वैक्सीनेशन कराओ, उससे आप और बच्चा दोनों ही सेफ रहेंगे। तो और ये फोर्टिज हॉस्पिटल में आप हैं, तो हाउ सेफ इज फोर्टिज हॉस्पिटल के, क्योंकि आज हर जगह हॉस्पिटल जाने से हम बोले ये होता कि कहीं वहां जाके कोविड के शिकार ना हो जाए हमने, तो हाउ सेफ इज फोर्टिज, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं आप, कैसे उसको बचाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज सबको ये लगता है कि कोविड ना, प्रॉब्लम इज दैट कि कोविड एरिया जो हॉस्पिटल का होता है वो टोटली अलग होता है। उसकी एंट्री एग्जिट वो आम हॉस्पिटल के लोगों के बीच का एरिया है ही नहीं। कोविड पेशेंट जहां होते हैं वो जो फ्लोर अलग है, उसकी एंट्री अलग है, उसकी एग्जिट अलग है। वहां नॉर्मल आम आदमी, आप, मैं या हम जैसे डॉक्टर्स भी नहीं जा सकते। तो उसका नॉर्मल लोगों के साथ, जैसे अगर आप रोड पे चल रहे हो, अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हो, आपके नेक्स्ट बिल्डिंग में कोई किसी को कोविड पॉजिटिव है, तो उससे आपको तो नहीं हो जाएगा ना कोविड, है ना? वैसे ही अगर हॉस्पिटल के किसी और बिल्डिंग में कोविड एरिया है तो उससे आपको नहीं होगा कोविड। सो ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल जाने से कोविड आपको हो जाता है। कोविड किस ढंग से होता है? भीड़ से होता है। तो अगर आप भीड़ का पालन नहीं कर रहे, अगर क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं, आप मास्क नहीं पहन रहे, तो कोविड होगा। पर हॉस्पिटल आने से प्रॉपर, यहाँ तो प्रॉपर प्रोटोकॉल बेस्ड है, आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है, आपकी स्पेसिंग की जाती है, जब आप लाइन में खड़े होते हो टोकन के हिसाब से आपको बुलाया जाता है, डॉक्टर के चेंबर के सामने भी आपको जो बैठने की जगह में स्पेसिंग दे रखी है। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल आने की वजह से आपको कोविड का डर है। तो जो कोविड पॉजिटिव जो प्रेग्नेंट या डिलीवरी के वक्त जो एडमिट होती है, तो उनके लिए भी सेपरेट वार्ड होगा? बहुत वैलिड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जिन भी कोविड पेशेंट्स की हम डिलीवरी करते हैं, हमारा एक स्पेशल एरिया है जिसको कहते हैं नेगेटिव प्रेशर एरिया, कि वहां के अंदर के वायरस कहीं भी नहीं जा सकते। वहां का कुछ ऐसा माहौल होता है कि वहां की हवा अंदर के अंदर ही रह जाती है और वो अंदर ही कीटाणु मुक्त होती है। वहां पर स्पेशल पीपीई किट पहनकर ही हम लोग जा सकते हैं। तो पूरी की पूरी टीम प्रॉपर पीपीई किट, जितने असाइंड होते हैं उस डिलीवरी के लिए, वो पीपीई किट पहनकर उस जगह जाते हैं। वो एरिया आम एरिया के बीच में नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी एरिया में नहीं है, नॉर्मल लेबर रूम में नहीं है, नॉर्मल वार्ड में नहीं है, वो टोटली डिफरेंट एरिया है जी। सो कोविड एरिया हमने प्रॉपरली आइसोलेट करके रखा हुआ है। ठीक है। कोई आखिरी जो अब खुद कोई इस दौर में कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो या इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ हो जो इस दौर में कोई? या मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था जब कोविड वैक्सीनेशन फर्स्ट टाइम आया मोहाली में। हाँ जी। सो फर्स्ट वैक्सीनेशन लड़के लड़कियों के बीच में मैं गई थी वैक्सीनेट कराने के लिए। अच्छा। क्योंकि सबके सब डर रहे थे, इंडिया में कोई स्टडी थी नहीं, सब डर रहे थे कि इसको वैक्सीन लगाए, जो लगाएगा उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। शुरू में ऐसे तो एक मुझे एज अ लीडर आई थॉट कि आई शुड टेक द लीड। मैंने लीड ली, वैक्सीनेशन कराया और पूरे लोग वेट करते रहे, हफ्ते तक देखते रहे कि मैं जिंदा हूं, जब मैं ठीक रही तब मैं जाकर वैक्सीन कराया। सो यस, दैट हैपेंड। सो ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, डबल डोज वैक्सीनेशन होगी। उसके बाद मेरी पूरी स्टाफ ने, मेरे अंडर जितने भी डॉक्टर्स एंड नर्सेस काम करते हैं, वी वेंट फॉर 100% वैक्सीनेशन, बिकॉज उन्होंने साथ देखा कि अगर बॉस ठीक है, इसका मतलब जूनियर स्टाफ भी ठीक ही रहेगा। एक डोज तो मैंने भी ले ली है,
फर्स्ट में भी करा वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशन, सेकंड भी ले लेना। सेकंड होने वाले लवार। राइट 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 राइट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा, आपने बहुत अच्छी एक्सपर्ट ओपिनियन दी, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।